Hi friends, Swiggy is planning to launch an IPO of rupees 5,000 crores later this year. इस पूरे IPO के पीछे का रीजन है to expand their current business as well as to compete efficiently with their existing competitor Zomato. Their path to profitability, saying they're confident of growing their profits 10x in the next 5 years. According to media reports, the Bengaluru-based company is eyeing a massive $1 billion raise from this IPO, and there is. What's the thought, Swiggy versus Zomato? Before starting the video, I have a request to make, guys. If you like my content, please do subscribe to my channel because it's gonna motivate me a lot to go further with this YouTube channel. फ्रेंड्स, Zomato एंड Swiggy पिछले 10 साल से कंपेटिटर्स हैं. Zomato ने अपना IPO पिछले साल ही लॉन्च कर दिया था. अगर हम ऊपर से इन दोनों बिजनेसेस को स्टडी करें तो इनका बिजनेस मॉडल, इनकी सर्विसेज, इनका बिजनेस स्टाइल हमें इक्विवेलेंट सा ही लगेगा. तो आइडियल केस सिनेरियो ये नहीं होना चाहिए कि इन दोनों का मार्केट शेयर भी इक्वल हो. लेकिन एट दिस पॉइंट Zomato इज लीडिंग विद 55% मार्केट शेयर एंड Swiggy का मार्केट शेयर है 44% इन ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट. तो ऐसा क्यों हो रहा है? वाई इज Zomato लीडिंग दिस पीस एंड वाई Swiggy इज नॉट एबल टू कोप अप विद दैट? लेट्स डीप डाइव इनटू इट. Swiggy got started in 2014, whereas Zomato got started in 2008. जब Swiggy मार्केट में आया तब तक ऑलरेडी Zomato के पास 6 साल का एक्सपीरियंस एंड 37 करोड़ का ईयरली रेवेन्यू था. लेकिन Swiggy एंड Zomato एक ही साल में यूनिकॉर्न बने, which was 2018. Zomato reached this level in February, whereas Swiggy reached this level mid of the year. उस टाइम पे Swiggy was the fastest startup to reach the unicorn level. And everything was in favor of Swiggy till 2020 because at that time Swiggy was holding a market share of 53% whereas Zomato was lagging behind with a market share of 46%. लेकिन everything changed in 2022 when the market share of Zomato rose to around 52% and Swiggy lagged behind with a market share of around 47%. Zomato became profitable in 2023 with a profit of 117 crore and a revenue of around 5,300 crores. लेकिन Swiggy on the same year booked a revenue of around 8,300 crore and losses of around 4,200 crores. यहाँ पे एक बात देखना ज़रूरी है कि Zomato आज भी प्रॉफिटेबल है with a profit of 1,300 crore rupees, लेकिन Swiggy ने अपने लॉसेस ज़रूर कम किया till 2,500 crores, लेकिन still they are losing more money. Swiggy is earning more as well as losing more, whereas Zomato, even though it's earning less, is highly profitable. And we have some reasons for it as well. Reason number 1, Zomato's expansion plan. Friends, अभी हम टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी प्री पेंडेमिक एरा. 2020 से पहले Zomato एंड Swiggy दोनों का फोकस होता था टूवर्ड्स टियर 1 सिटीज. उसमें भी वो कंज्यूमर्स जो डेली ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं फॉर देयर लंच. यहाँ पे Swiggy एक immense amount of consumer loyalty को experience कर रहा था. This might be because of their better consumer experience as well as better consumer support. लेकिन Zomato को यहाँ पे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा अर्ज थी कि अगर सेम मार्केट में काम नहीं चल रहा है तो let's tap the untapped markets. इसका मतलब they wanted to explore tier 2 and tier 3 cities. That is why they acted on it. लेकिन 2020 में tables got turned. बिकॉज Swiggy का फोकस था ही नहीं टियर 2 टियर 3 मार्केट्स में एंड Zomato ऑलरेडी अपनी पहचान बना चुका था. जब पेंडेमिक स्टक हुआ, ऑफिसेज वाले लोगों को जाना पड़ा घर एंड वहाँ पे दे वर नॉट एबल टू चेंज देयर लाइफस्टाइल. यानी कि जो लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना चाहते थे उनके पास उनका फेवरेट पार्टनर Swiggy तो था ही नहीं. दैट इज़ वाई दे टर्न टू Zomato एंड यहाँ से Zomato ने अपना डेल्टा कवर किया. यानी कि जो कंज्यूमर्स Swiggy को प्रेफर कर रहे थे दे स्टार्टेड यूजिंग Zomato एंड Zomato लेवरेज्ड ऑन इट. जब 2022 में चीज़ें बैक टू नॉर्मल होने लगी तब Swiggy ने अपना वो मार्केट शेयर लूज कर दिया Zomato को एंड Zomato केम इन द मार्केट. आज भी Zomato टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में Swiggy से बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है. दे हैव ओवरऑल बेटर मंथली एक्टिव यूजर्स एज कम्पेयर टू Swiggy विद अ प्रेजेंस ऑफ मोर देन 750 सिटीज़ एज कम्पेयर टू Swiggy जिसका प्रेजेंस सिर्फ 580 सिटीज़ में है. तो ये एक एक्सप्लोरेशन का मोड Zomato के बहुत काम आया एंड दैट इज़ वाई Swiggy lagged behind. Reason number 2, Swiggy having lesser AOV. अब पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ों को जान लेते हैं कि ये पूरे एग्रीगेटर बिजनेस के अंदर दो टर्म्स बहुत बार यूज होंगी. एक TMU यानी टोटल मंथली यूजर्स एंड दूसरा AOV यानी एवरेज ऑर्डर वैल्यू.
अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू यानी कोई भी कस्टमर ऑन एन एवरेज कितने वैल्यू का खाना ऑर्डर करता है जोमेटो या स्विगी से। यहाँ पे जोमेटो हैज हायर AOV देन स्विगी। जोमेटो का AOV अराउंड 420 रुपीज़ है, वेयर एज स्विगी का अराउंड 390 रुपीज़ है। अब ये जोमेटो का AOV हायर कैसे है एंड स्विगी का लोअर कैसे है, इस बात को समझते हैं। जोमेटो के अंदर एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है कि जोमेटो के नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू स्विगी। तो फर्स्ट बैटल वन, मतलब जोमेटो के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं एज कम्पेयर टू स्विगी। लेकिन दोनों का AOV सेम भी तो हो सकता है, बिकॉज इट्स अ बेसिक डिविजन। जितने ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं उतने ज़्यादा लोग भी तो हैं। यहाँ पे एक बात समझने की है कि जोमेटो इज स्ट्रैटेजिकली वर्किंग टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द AOV वैल्यू। ये AOV वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज़ का खाना मंगाया और आपने 500 रुपीज़ का खाना मंगाया। इन दोनों को डिलीवर करने में जोमेटो को एक ही खर्चा आएगा एंड स्विगी के साथ भी यही केस है। इसलिए जोमेटो इज फोकसिंग कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हायर वैल्यू का खाना मंगाएं। इसके लिए दे हैव पार्टनर्ड विद मोर नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स एज कम्पेयर टू स्विगी। एट दिस पॉइंट स्विगी हैज़ अराउंड 240,000 restaurants as a partner, whereas Zomato has attained this number of around 4 lakh. That is why Zomato is doing better. Reason number 3, acquisitions. See, Swiggy and Zomato, apart from online food delivery, other businesses में भी अपना part invest करते हैं and वहाँ से उन्हें revenue भी आता है. For example, in Zomato, the businesses are Blinkit, Hyperpure, whereas in Swiggy, the businesses are Swiggy Instamart, Swiggy Jimmy. यहाँ पे एक चीज़ focus करने की है. Majority of the acquisitions are done by Zomato and वो acquisitions उसे fruitful prove हो रहे हैं as compared to Swiggy। जितने भी other sub brands हैं Swiggy के mostly are homegrown। अब acquisitions and homegrown brands में एक problem होती है। Acquisitions में even though you have one time payment but इसके साथ साथ आता है experience, way to drive that business and already existing business presence। Whereas अगर हम कोई homegrown ब्रांड को खड़ा कर रहे हैं उसके अंदर पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, एक्सपीरियंस की कमी भी होगी, मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी, एज वेल एज लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा है एंड ये रिजल्ट साफ दिखता भी है। ब्लिंकिट एंड स्विगी इंस्टामार्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ब्लिंकिट ऑलरेडी 7 to 8 years का एक्सपीरियंस था उसके पास जब जोमेटो ने एक्वायर किया ब्लिंकिट को एंड दैट इज वाई दे आर हैविंग 45% ऑफ मार्केट शेयर टिल नाउ। उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी ज़्यादा एज कम्पेयर टू इंस्टामार्ट, whereas Instamart has 27% market share and an average order value of 450 as compared to that of 650 of Blinkit. And इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि Swiggy is not about all bats। पिछले 10 साल से मार्केट में है and still they have prominent market share। It means they are doing some goods, right? They are giving us better experience, good application, services equivalent or sometimes better to Zomato, but there are few things that Swiggy has to work upon. And the first of all is better partnerships with the restaurant। ये नंबर उन्हें increase करना पड़ेगा। दूसरा, they have to focus upon increasing their average order value, else they have to be losing on each and every order that they have placed till now। And तीसरा, they should focus more upon their online food aggregator business because they are lacking a lot in that as compared to Zomato। Or businesses, they can still manage, but the identity is online food ordering and they have to keep it। I hope फ्यूचर में एक ऐसा सिनेरियो हो जिसके अंदर जोमेटो एंड स्विगी इक्वल मार्केट शेयर रन करें एंड प्रोमिनेंट पार्टनर्स हों। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू।